हे एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फेमिनिस्ट अप्रोचेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा ये चैप्टर। सो गाइस, फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। So the women movements has struggled for long to get women's right recognized as human rights. तो वुमेन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि वो अपने ह्यूमन राइट्स को ले सके. While human rights violation can take place on any individual, women are subject to human rights violation in a gendered way. For instance, rape is a method of torture or punishment for errant women. So rape क्या है? मेथड है जिससे हम वुमेन को टॉर्चर कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं. इट वॉज ऑल्डर मच प्रेशर फॉर द वुमेन मूवमेंट दैट द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन was proposed by the United Nations in December 1979. So ये United Nation ने कब propose किया? 1979 में. This convention addresses systematic discrimination against half of the world's population. Then many states have still to sign this convention. और बहुत सारे स्टेट है जो जिसने अभी ये कन्वेंशन को साइन भी नहीं किया है. Even rape has been recognized as a war crime only in the year 2000. तो रेप को एज अ वार क्राइम कब कहा गया? 2000 में. While the CEDAW and the recognition of women's right are important step, in many cases this remain normative. Instrumentally, there is great need to create a body like the International Criminal Court where violation of such instrument can be educated. तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाना चाहिए जिसमें हम ये सारे केसेस को एजुकेट कर सके. Then feminist critique of realism. So realists argue that states are the primary provider of security and an individual secures her or he security by virtue of membership to the national community. तो रियलिस्ट क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक प्राइमरी प्रोवाइडर है सिक्योरिटी का. Then the image of the state as a protector is widely and powerfully used in realism. और रियलिज्म में जो स्टेट है उसे काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्टर, एक पावरफुली कहा गया है. द प्रोटेक्टर इज एट्रीब्यूटेड विथ मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड द प्रोटेक्टेड विद द फेमिनाइन. और जो प्रोटेक्ट करता है उसे किससे एट्रीब्यूट किया है? मस्कुलाइन से. और जिन्हें प्रोटेक्ट करना है दैट इज़ उसे फेमिनाइन कहा गया है. द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इनएक्सट्रिकेबल from that of the state because the state protect and preserve the social order and protect individual from invasion by foreigners and from injuries to one another. So in this paragraph we had seen that जो रियलिस्ट है उनका जो मेन फोकस है वो स्टेट के ऊपर, वो स्टेट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. एंड रियलिस्ट कहते हैं कि जो पैट्रियार्ची है वो नेसेसरी है जिससे हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, स्टेट को भी मेंटेन कर सकते हैं. ऐसा रियलिस्ट का कहना है. दैट इज़ दे आर सपोर्टिंग द पैट्रियार्चिकल सिस्टम. Then feminism, war and peace. War are seen as the activity of men and women are positioned as secondary during war. तो war में जो मेन एक्टिविटी है उनको मेन की एक्टिविटी बताता है एंड वुमेन को एक सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है. देन नोट फॉर इंस्टेंस the opening sentence of the UNESCO Charter that states since war are made in the mind of men, it is in the mind of men that peace should be made. This assumes that those who make war only the one who make the peace and the nation. Since war are seen as nation building exercises, it is men who appear to be most involved in this task. They then are the more privilege of the two gender in the national enterprise. तो गाइस जो मैन है उसे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया है. दैट इज़ वार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा गया है मैन को. एंड वुमेन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस थिंग. जबकि सबसे ज़्यादा है जो वुमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ता है. दैट इज़ वुमेन के ऊपर ज़्यादा उनको सहना पड़ता है वार के टाइम पे. फेमिनिस्ट सी वार एज अ जेंडरिंग एक्टिविटी. वार marks the gender of all members of society whether they are or not combatant. Then even today there are less than 10% of women in most parliament. और आज के टाइम तक जो पार्लियामेंट में है वो वुमेन के बहुत कम सीट है, सिर्फ 10% है. In many countries, especially in the third world, there are no women at all in the higher decision making bodies of the executive like the cabinet. और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती है उनमें जो वुमेन के
वुमेन की जो तादाद है हायर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, एग्जीक्यूटिव में, तो वो बहुत कम है. So in wartime, sexual violence against women has occurred in almost all war through history. तो जब भी वार हुआ है, जब भी युद्ध हुआ है, तो जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ है वुमेन के खिलाफ, तो वो ऑलमोस्ट हर टाइम हुआ है. इट इज़ यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉशन अगेंस्ट द एनिमी इन वार, और इसे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉशन यूज़ किया गया है हर बार. इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज ड्यूरिंग इथनिक एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, और हर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम इसे यूज़ किया गया है. द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड द वायलेशन ऑफ वुमेन बॉडीज हैज़ बिन रिपीटेडली एस्टैब्लिश इन ऑल वार एंड कॉन्फ्लिक्ट. This phenomena was widespread whether it was the participation of India in 1947 or when the fleeing Pakistan armed army raped 22 lakh Bengali women in Bangladesh in 1971, or more recently during ethnic conflict that marked the emergence of the breakaway republic of former Yugoslavia. So guys, आपने जो ये रेप का इंसिडेंस काफ़ी एकदम नॉर्मल चीज़ बनाया है. मीन्स जो रिस्पेक्ट, जो वुमेन की रिस्पेक्ट है, वुमेन की डिग्निटी है, उसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है वार के टाइम पे. एंड हर पैराग्राफ में, हर पैसेज में हमने ये पढ़ा है कि जो मेन है उसमें ही जो वार के टाइम उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई है. लेकिन आपने देखा कि जो वुमेन है उनकी डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को कैसे यूज़ किया गया है. सो गाइस, वुमेन को काफ़ी ज़्यादा हरास किया गया है, काफ़ी ज़्यादा उनको इन सब चीज़ों से उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है. देन द बिलीव दैट मास रेप इज़ पार्ट ऑफ जिनोसाइड, ह्यूमिलिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी. और इसे क्या गया है कि मतलब रेप को जो एनिमी के अगेंस्ट यूज़ किया गया है. फ्लोज फ्रॉम पैट्रियार्चल अंडरस्टैंडिंग दैट अ वुमेन बॉडी इज़ नॉट ओन्ड बाय हर बट इज सिम्बॉलिक एज टेरिटरी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एनिमी. तो जो वुमेन बॉडी है उनको खुद के लिए ना समझ के उनको एज ए एनिमी की प्रॉपर्टी समझा है, विच मस्ट बी वॉयलेटेड, जिसे हम वॉयलेट कर सकते हैं. सो गाइज, इन दिस वीडियो वी हैव सीन दिस. तो गाइज, द कंक्लूजन इज़ दैट द वुमेन के जो राइट्स हैं उन्हें काफ़ी टाइम से वॉयलेट किया जा रहा है. एंड एट दिस टाइम ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग जस्ट, हमें काफ़ी सारे जो राइट्स हैं मिले हैं, सारे राइट्स हमें मिल रहे हैं. हमें काफ़ी सारे जॉब्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है. लेकिन अभी भी कुछ है जहाँ पे हमें उतने राइट्स, हर एक चीज़ नहीं मिल रही. तो गाइस, वुमेंस को उनके सारे राइट्स मिलना चाहिए. जो वुमेंस हैं, मेंस हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड द वुमेन, बिकॉज जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है, इट डजेंट अफेक्ट एनीथिंग. जो रिप्रोडक्शन है वो एक नेचुरल और बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, उससे वुमेन कमज़ोर नहीं होती है. दैट वुमेन are the most stronger because they are doing all the household work, they are taking the education, they are just also giving a birth to they are giving a new life, so they are more stronger. So we should not think that women are weak. So guys, in this video we have completed our chapter, and in the next video we will see another chapter. So if you like the video, then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye, take care.